औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी आयानु पखैर आगले निहाओ चुनशुमे वशमले ओहाय गंजाइमस guten morgen hola bonjour privyet kaifa hal हाल शुमा चतोरे ahlan wa sahlan marhaba buna mucho gracias स्वाबी अब भल्ली करे आया होश गैलन and ayo sayo huya mora chibato chi halyot kali mera khairutan and very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and are watching the pre-match analysis on Game On है मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे मैं एक दफा फिर से आपको a very warm welcome thank you so much for tuning into PTV Sports and yet again ladies and gentlemen it's a new dawn it's a new day and we are certainly eyeing on this very amazing game which is going to take place in a couple of hours भाई इससे पहले कि हम मजीद गुफ्तगू करें मैं अपनी वंडरफुल को होस्ट का तारुफ कराना चाहता हूं and she happens to be Miss Roha Nadeem. Hello Roha, assalamu alaikum, good morning, how are you? Good morning Shahzad, good morning to everybody who's joining us on Game On here this morning once again for all the pre-match analysis and in-depth discussion about the match that is going to take place today in the ICC Men's Cricket World Cup 2023 being played in India. अभी तक हमने तकरीबन 6 venues देख ली हैं आज हम पुणे में मैच देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त clash होगा between Exactly. India. It's going to be India and Bangladesh, ladies and gentlemen. So let's take a good look at the card. And it's not very occasional that they would come across each other. So, taking a good look at, the contest in Pune. So, Roha, the best part is that, defeating India in India is something, this will be a question for Bangladesh. And in addition to this, what we really need to kind of talk about over here is कि लास्ट टाइम अगर हम इंडिया के अंदर बांग्लादेश की गेम की बात करते हैं इट वाज बैक इन 1998 सो आफ्टर 25 years Bangladesh will be coming across India in ODIs. Yes, in ODIs. और 1998 की जब हम बात करते हैं तो they might get a little bit of experience. उसकी वजह ये है कि जो इनके चीफ सिलेक्टर हैं वो उस टाइम खेले थे बांग्लादेश के 1998 में. I think बहुत एक रिच हिस्ट्री है इन दोनों टीम्स ने आपस में तो काफ़ी क्रिकेट खेली है बट मोस्ट ऑफ इट हैज़ बिन आउटसाइड इंडिया व्हेन इट कम्स टू ODIs. अभी देखना ये होगा कि आज का ये चैलेंज जो है वो बांग्लादेश कैसे ओवरकम करते हैं बिकॉज अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही कि शाकिब अल हसन खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे. सो shortly we will also have that confirmation but that is something that will make or break this match for Bangladesh. Exactly. So without any further ado, let me introduce our worthy guest, Khawateen Ozraj. If we talk about the recent age, ladies and gentlemen, he happens to be one of the best commentators, broadcasters, not just that, happens to be a former test cricketer himself. He is Mr. Bazid Khan. Assalamu alaikum, Bazid bhai. How are you? वालेकुम सलाम अल्लाह का शुक्र. Thank you so much for joining us. आप रोहा को नहीं सलाम किया आज आपने? मैं देख रहा था कि आप शायद आज थोड़ी शर्म खाएं. रोहा कैसी हैं आप? कैसे हैं आप बीके? हाउ आर यू? थैंक यू सो मच. और इससे पहले कि मैं अगले मेहमान की जाने बढ़ूं खवातीन और साथ वो चाहते हैं कि रोहा उनका तारुफ कराएं तो मैं रोहा से कहूंगा कि रोहा व्हाई डोंट यू डू द ऑनर्स? Well, we are very lucky that we are joined by former Pakistan captain the professor. इनकी जो एनालिसिस है वो भी इनकी जो परफॉर्मेंस रही है क्रिकेट में खास तौर पे इनकी बैटिंग उसकी तरह ही है वेरी टेक्निकली साउंड बट आल्सो विद सम सरप्राइजेस हियर एंड देयर. वी हैव मिस्टर मोहम्मद हफीज विद अस. अस्सलाम वालेकुम हफीज. वालेकुम अस्सलाम रोहा. देखो सेम अल्फाज हैं लेकिन अच्छे लग रहे हैं. देखिए फिर से मैं अपने कमेंट्स रिजर्व कर लेता हूं. मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूंगा. वो खवातीनों जहां हमने फॉर्मर कप्तान की बात की वहीं पे हमारे पास एक ऐसे कप्तान भी मौजूद है खवातीनों जब हम डाटा की स्टैटिस्टिक्स की एनालिसिस की बात करते हैं. नॉट जस्ट दैट अगर हम इस वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करें आई थिंक विकेट कीपर बैटर्स हैव बीन द टॉक ऑफ द टाउन. दे हैव बीन अंडर द स्पॉटलाइट. ही हैपेंस टू बी अ फॉर्मर स्किपर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम. विकेट कीपर बैटर ये है मिस्टर राशिद लतीफ. अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई. वालेकुम अस्सलाम. सुबह बखैर सर, कैसे हैं आप? यार ठीक हूँ बस. थैंक यू. क्या वजह से? पुणे में मैच है जी. पुणे से बम्बई की जो मोटरवे है ना वहाँ पे रोहित शर्मा पकड़े गए थे पता है आपको स्पीडिंग करते हुए. ठीक है. क्या करते हैं स्पीडिंग? हाँ 225 क्लॉक किया उन्होंने. रन नहीं किए पुणे में. कल मैं ढूंढ रहा था फिर से मेरी पैसी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी 200 जी. तो देखा तो आया क्या हाँ उसने उस मोटरवे के ऊपर 200 क्लॉक किया उसने तो पकड़े गए. चालान हुआ था उनका पुणे मुंबई मोटरवे. एग्जैक्टली सर. वो बात ये कि देखें अगर वो पुणे में नहीं करते तो कहीं ना कहीं और जरूर करते. उनकी फॉर्म तो टॉप ऑफ द टाउन है. पुणे में सही नहीं चल रहे वो. एग्जैक्टली. अच्छा सर सबसे पहले आपके हम जरूर फॉरवर्ड्स लेना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं. काफ़ी अर्से के बाद दोनों मद्दे मुकाबिल हैं यहाँ पे. आई थिंक काफ़ी सालों के बाद. 25 साल बाद. आप ही ने कल शायद रात में बताया था भूल गया था मैं. मैच विनर बहुत ज़्यादा है इंडिया के पास. इनके पास जैसे इन्होंने कहा कि साकिब शायद ना खेलें 1-2 मैच विनर हैं लेकिन कंबाइंड अगर एफर्ट हो तो आप अच्छा मुकाबला कर सकते हैं. वैसे देखने में यही आ रहा है कि इंडिया
बेहतर साइड है, वो जीतने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल। बांग्लादेश की अगर हम बात करें, पहला मैच वो अपना जीते अगेंस्ट अफगानिस्तान, बट लास्ट 2 मैचेस वो बहुत बड़े मार्जिन से हफीज़ हारे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये बांग्लादेश की टीम ऐसी है कि ये किसी डिपार्टमेंट में परहैप्स इंडिया को आउट प्ले कर सकती है, या कोई क्लोज कॉन्टेस्ट हमें आज देखने को मिल सकता है? जी ज़रूर कर सकती है। अगर इनकी आप हिस्ट्री देखें तो उन्होंने इंडिया को 12 चैलेंज किया। 2007 का जो एग्ज़िट था इंडिया का पहले ही राउंड में, वो भी बांग्लादेश से हारने के बाद हुआ। लास्ट एशिया कप के अंदर इंडिया गो के टूर्नामेंट जीते, लेकिन वो बांग्लादेश से हारे हुए हैं। तो ये टीम तो ऐसी है, ये चैलेंज कर सकती है इंडिया को, और इनके पास कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि जब आप रिसेंट पास में या आपकी रिच हिस्ट्री हो कि आपने किसी टीम को चैलेंज किया हो इन अ बिग इवेंट्स, तो वाई नॉट टुडे। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि बांग्लादेश को राइट डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। टॉस से लेके, टॉस अगर जीतते हैं तो उसमें ये क्या डिसीजन लेते हैं। ड्यू आखिरी 10 ओवर के ऊपर अगर फैसला लेना है तो 80 ओवर आप हार जाओ, 90 ओवर आप हार जाओ, आखिरी 10 ओवर में आप क्या कर लोगे। तो मुझे ये लगता है कुछ चीज़ ऐसी हैं जिसको राइटली कॉल करने की ज़रूरत है। कुछ थोड़ी से बैटिंग ऑर्डर में मुझे लगता है अगर चेंजेस की जाएँ। शाकिब, वी ऑल नो कि लास्ट जब वर्ल्ड कप हुआ तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर थे, और वो इसलिए थे कि ही वॉज बैटिंग एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। तो अगर नंबर 3 पे शाकिब अपने आप को प्रमोट करते हैं इस मैच में या इस वर्ल्ड कप में, तो वो बांग्लादेश के लिए ज़्यादा बेहतर है। मुशफिक बैटिंग एट नंबर 6 टू मी इज़ नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग टू मी। महमूदुल्लाह बैटिंग एट नंबर 8। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको राइटली अगर वो ऑर्गेनाइज करते हैं, अपना बैटिंग ऑर्डर सेटल करते हैं। तस्कीन की यूटिलाइजेशन अभी तक उस लेवल पे नहीं की गई। तो बहुत से क्वेश्चन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश अपने इन ऑर्डर सेटअप करे, सही तरीके से अपने डिसीजंस ले, तो मुझे लगता है कि दे कैन चैलेंज इंडिया। गो कई इंडिया एट द मोमेंट इज़ फ्लाइंग हाई, बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन ऑन द डे आप किसी लाइक इट टेक्स ओनली 1 डे आई बिलीव। बिल्कुल। बीके, पुणे के बारे में हमें क्या पता है, बिकॉज आज का मैच जो है वो पुणे में खेला जाएगा। ज़्यादा नज़र आएंगी क्योंकि थोड़ा सपोर्ट मिलता है, जो आधी हिट भी लगेगी वो ग्राउंड से बाहर जाएगी। तो इसकी रेपुटेशन यही है कि यहाँ पे बैटिंग ट्रैक होता है और रन्स बहुत बनते हैं और तेज़ रन्स बनते हैं। तो चेस में ये फ़ायदा होता है कि अगर फॉर इंस्टेंस 10-12 की भी आपको वो चाहिए एवरेज इन द लास्ट फ्यू ओवर्स, बाउंड्री ऑप्शन ज़्यादा हैं क्योंकि बॉल ट्रैवल करता है। ट्रू। अब यहाँ पे मेरा ख्याल है देखना ये, जहाँ पे हमने डिफेंडिंग चैंपियंस को देखा अनफॉर्चुनेटली, फिर अफगानिस्तान पे, साउथ अफ्रीका को देखा, नेदरलैंड्स के साथ, फिर हमने देखा पाकिस्तान भी शायद उस किस्म की फॉर्म में नहीं है। देन टुवर्ड्स द एंड न्यूजीलैंड 4 मैचेस अपने चारों के चारों जीते हुए हैं, एंड इंडिया माइट बी वांटिंग टू डू दिस सिमिलर। यहाँ पे ये देखना बड़ा जरूरी होगा कि वर्ल्ड कप में जब जब इंडिया और बांग्लादेश का एनकाउंटर हुआ है तो किस किस्म के रिजल्ट्स जो हैं वो गार्नर किए गए हैं। मैं राशिद भाई की जाने वापस आना चाहता हूँ यहाँ पे। राशिद भाई, वर्ल्ड कप के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बता दें कि इंडिया 3 दफा जीता और एक जो 2007 ट्रिनिडाड की बात की, तारीखी मैच था वो 2007 में। उसके बाद आईसीसी ने सारे रूल चेंज कर दिए कि इंडिया पाकिस्तान ज़रूर खेलेंगे वर्ल्ड कप में, क्योंकि लॉस फाइनेंशियली हुआ होगा नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके बाद रूल चेंज किए। 2011 से लेके अब तक हर वर्ल्ड कप में दोनों आपस में खेलते हैं, कभी कभार तो शुरू में ही खेल जाते हैं, तो रेवेन्यू जनरेट करते हैं पाकिस्तान। लेकिन वजह कौन बनी? बांग्लादेश। उन्होंने हराया, वो पाकिस्तान को आयरलैंड ने हराया था, दोनों टीम बाहर हो गई थी और बड़ा सदमा हुआ था, क्योंकि आधी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो तो इसी खत्ते में ना, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल, ये सारे चाइना नहीं, क्रिकेट की बात है। अच्छा ठीक है। तो ये क्रिकेट वाले, ये इंडिया में 1 अरब लोग अगर देख रहे हैं या 80 करोड़ देख रहे हैं, तो ख़राब हो गया था वर्ल्ड कप। उसके बाद चेंज आया क्रिकेट में। 11 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता, 15 का हुआ, फिर उसके बाद होता रहा। यही मुझे एक याद है जो बड़ा मैच है। बाकी एशिया कप वो चलता रहता है, बहुत सारे हम भी हारते रहते हैं, हम तो कम ही जीते हैं, 6 दफ़ा जीते हैं। इंडिया जीता है, श्रीलंका जीता है, लेकिन ये मैच इसलिए याद है कि इसने हिस्ट्री चेंज की थी वर्ल्ड कप की। एग्जैक्टली 5 विकेट से मेरा ख्याल है गालबन बांग्लादेश जीता था 9 बॉल्स रिमेनिंग। रोहा, आप क्या लेकर आई? हमने तो वर्ल्ड कप की बात कर ली है। आई थिंक हर मैच से पहले हम यही बात जो है अपने आप को एक रिमाइंडर देते हैं कि ठीक है, वर्ल्ड कप्स के हेड टू हेड तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें ज़्यादा मे बी रेलिवेंट ये होगा कि रीसेंट जो इनके हिस्ट्री है इन दो टीम्स की आपस में वो क्या है, और वहाँ पे जो है बांग्लादेश जो है थोड़े से हैवी नज़र आ रहे हैं। तो लास्ट 5 ODIs दैट हैव बीन प्लेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हैव won 3 out of 5 whereas India have won just twice. ये हफीज़ गोइंग इनटू दिस मैच, ये स्टैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आखिरी 5 गेम्स का। बांग्लादेश डेफिनेटली इसमें कॉन्फिडेंट होंगे। व्हाट डू यू थिंक हाउ दैट विल इम्पैक्ट टुडेज परफॉर्मेंस?
मैं पहले कह चुका हूँ कि बांग्लादेश के पास बहुत सी राइट रीज़न है टू परफॉर्म वेल, क्योंकि इस ऑपोजिशन के खिलाफ उनकी कामयाबी रीसेंट पास में और वर्ल्ड कप में भी उन्होंने हराया। वैसा नहीं कि वर्ल्ड कप के अंदर वो अभी तक इनको नहीं हरा सके, चाहे वो आज से 20 साल पहले था, 8 साल 15 साल पहले था, वोंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन साइकोलॉजिकली यू हैव समथिंग इन योर पॉकेट कि यार ये मेरे लिए मुझे कॉन्फिडेंस दे सकती है। और इनकी टीम की कंपोजिशन ठीक है, मुझे इनके टैलेंट के ऊपर शक नहीं है, बट यूटिलाइजेशन के ऊपर मुझे सम टाइम डाउट्स या मेरे कंसर्न रहते हैं कि यार ये कैसे आप अपने टॉप प्लेयर को नीचे लेके जा रहे हैं और अपने टॉप बॉलर को राइट यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे अगर प्लानिंग अच्छी की जाए तो इंडिया कुड बी चैलेंज्ड बाय बांग्लादेश। रोहित शर्मा जो इनके मेन प्लेयर हैं वो इस वेन्यू के ऊपर इतने प्रोडक्टिव इनिंग्स उनकी अब तक नहीं है। अपने कैरियर के अंदर उन्होंने जितने मैच खेले हैं उनके कोई इतने ज़्यादा एवरेज भी नहीं है, आई थिंक 20 या 25 की एवरेज है। तो अगर आप देखा जाए तो ये होता है साइकोलॉजिकल एज ए प्लेयर, समटाइम कुछ ऐसे वेन्यूज़ होते हैं कि वो आपको चैलेंज करते हैं। इसमें कोई भी वजह हो सकती है, आपकी टेक्निक वही होती है, आप वही प्लेयर होते हैं, लेकिन किसी वेन्यू के ऊपर आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और किसी वेन्यू पे आप चाहते हुए भी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये भी उनमें से एक है। अब देखना ये है कि अगर रोहित शर्मा की फॉर्म आज जो उनकी लगी हुई है, अगर वो आज आउट होते हैं तो क्या शुभमन गिल अपना सेंचुरी करके अपनी फॉर्म रीगेन करते हैं, क्योंकि वो पहले 2 मैचेस मिस आउट किए हैं। विराट कोहली जो हैं वो 100 सेंचुरी करते हैं, जो अभी तक उनकी इस वर्ल्ड कप में मिसिंग पार्ट है। गो के अभी 2-3 इनिंग्स ही खेली हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो इस टूर्नामेंट के अंदर अच्छा करें। तो 2-3 चीज़ें हैं इंडिया के लिए कि वो चाहेंगे कि उनके वो बैट्समैन जो अभी तक बड़े रन्स करके रोहित वाले जोन में नहीं आए, कंफर्ट जोन में या कॉन्फिडेंस जोन में, तो वो भी आए वापस। बांग्लादेश के पास सिंपल रीज़न है कि अगर वो जीते हैं तो वो फिर से अपने आप को एक फीलिंग देंगे कि अगर हम इंडिया को जीत सकते हैं तो वी कैन बीट एनीवन। But that feeling should really be just like how Afghanis felt after defeating the defending champions as well. बाजिद भाई, जो हफीज भाई ने बात की कि यार इनकी शायद टीम कॉम्पोजिशन तो हमें बिल्कुल लगता है कि परफेक्ट है, लेकिन जो यूटिलाइजेशन है कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पे खेलना चाहिए, क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि यार शायद हो सकता है कि हम नंबर्स ऊपर नीचे करें तो डिफरेंट रिजल्ट्स आए? बिल्कुल एग्री करता हूँ। इस वर्ल्ड कप में आप देख लें कि कोई नंबर, मतलब कभी मेहदी हसन मिराज ऊपर जा रहा है, महमूदुल्लाह को 8वें पे खिलाते हैं, तो फिर आप नसुम जो इनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है उसको नहीं खिला सकते, जो ऑफ स्पिनर है उनको नहीं खिला सकते क्योंकि आपने बैटिंग लंबी कर ली है। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम विद इन द साइड है कि आप वर्ल्ड कप में आप डिसाइड कर रहे हो कि जी एक मैच में ये ऊपर जाएगा, एक मैच में 1 डाउन जाएगा। जो आपका स्ट्रक्चर है, कॉन्फिडेंस क्या टीम को मिलता है कि जी आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड नहीं है विद इन द टीम। तो जब आप मैच खेलने जा रहे हो तो एकदम नहीं, लेकिन मतलब आपका एक सेट, ठीक है आप चेंज करते हो लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करते, फ्लेक्सिबल होते हो, लेकिन ऐसे नहीं होता कि सारा हिद्रोय जो है उसको भी नीचे आप करते हो, जो आपका मोस्ट सक्सेसफुल बैटर रहा है बिफोर द वर्ल्ड कप। तो प्रॉब्लम स्टेम उधर से करता है। जो दूसरी बात है, जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी की बात करते हैं, बांग्लादेश और इंडिया की बहुत बड़ी राइवलरी है। ये जैसे शहजाद कोशिश करता है ना हमारे से राइवलरी लगाने का, हम फिर इसको जाने देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। लेकिन बांग्लादेश और इंडिया की बहुत बड़ी राइवलरी है। एक दफ़ा सहवाग ने बोला था कि बहुत ही ऑर्डिनरी टीम है, और फिर वो वर्ल्ड कप में जो ये जिस बात करें वर्ल्ड कप में, फिर 2015 में ये सारा आया जब सब ये फट पड़ा। वो ऐसे हुआ कि रोहित शर्मा को बाउंसर हुआ, उसने पुल मारी, वो बाउंड्री पे कैच हो गया और नो बॉल देगी, उस पर कंट्रोवर्सी बहुत हुई। जो बांग्लादेश के फैंस थे, और मेरे ख्याल रोहित तो उसके बाद 100-100 कुछ ऐसे कर गया था, तो बांग्लादेश के फैंस जो थे वो वहाँ पे उठ पड़े, उन्होंने बैनर उठा लिए, जैसे एशेज का नहीं कि क्रिकेट इज डेड, वो ऐसे। उसके बाद से आप इसकी राइवलरी देखें, ये जो आखिरी 2 मैच जो बहुत क्लोज जीते हैं, मेहदी हसन मिराज ने इनको मैच जिताया, वहाँ पे मैच जीत के रिएक्शंस देखें तो जो राइवलरी सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की तो बहुत बड़ी राइवलरी नहीं, लेकिन ये भी ऐसी राइवलरी है कि वो उसका हिस्ट्री है थोड़ी सी, लेकिन जो ब्रेकिंग पॉइंट उसका वो रोहित वाला इंसिडेंट था। तो आप देखेंगे, हमने ये पहले भी बात अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हम ये देखेंगे कि हमने पहले भी बात की कि बांग्लादेश सबसे अच्छी जो अपनी परफॉर्मेंस छोड़ता है वो इंडिया के लिए छोड़ता है। वो इसलिए छोड़ता है क्योंकि राइवलरी अब जो है ना बहुत काफ़ी बड़ी है, और आज के मैच के बाद हो सकता है कि और ज़्यादा लेयर्स ऐड हो जाएं इस राइवलरी को। हम वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू इट, और कुछ ही देर में जो है मैच के बारे में और इन्फॉर्मेशन आएगी तो वी विल प्रोवाइड यू ऑल ऑफ दैट। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, व्हेन वी कम बैक वी हैव लॉट्स मोर टू टॉक अबाउट, तो कहीं मत जाइए, गेम ऑन है।
All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned to PTV Sports. Certainly, we're talking about the encounter taking place today. It's going to be India versus Bangladesh in Pune. और रोहा यहाँ पे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि 2013 से लेकर 2021 तक इंडिया ने 7 वनडे इंटरनेशनल्स खेले हैं यहाँ पर, जिनमें से 3 वो जीतने में कामयाब हुए हैं। लेकिन जिस बात के ऊपर हम एम्फोसाइज करना चाहते हैं वो ये कि वर्ल्ड कप में जहां हमें इनकी टीम की इकोनॉमी रेट जो है वो सबसे लोएस्ट नजर आता है, वहीं पर पुणे में सिर्फ 2 ओकेजन्स के अलावा बाकी सब मैचेस के अंदर 300+ टोटल्स जो हैं वो स्कोर किए गए हैं। फर्स्ट इनिंग्स की अगर मैं बात करूं, मैं हफीज़ भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूं यहाँ पर। हफीज़ भाई, जहां हम इंडिया की बॉलिंग की बात करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक नजर आ रहा है इस वर्ल्ड कप के अंदर, उनकी इकोनॉमी भी अच्छी नजर आती है। लेकिन जब हम डिफरेंट कंडीशंस की बात करते हैं या पुणे की बात करते हैं, आपको लगता है कि यार आज शायद उनकी इकोनॉमी डेंट हो सकती है, या बांग्लादेशीज वो स्किल रखते हैं कि पुणे में ऑन अ बैटिंग पेज दे वुड स्कोर हाई? देखें, अभी तक इंडिया की बॉलिंग लाइनअप इस पूरा टूर्नामेंट की राइट कंपोजिशन पे बेस कर रही है। ठीक है, उनके फास्ट बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं, उनके स्पिनर मिडिल ओवर के विकेट टेकर साबित हुए हैं, सोचने से नहीं करने से। तो उनके अश्विन एक मैच खेले, शानदार परफॉर्मेंस दी, उसके बाद मिस आउट कर गए। कुलदीप जब भी आ रहे हैं अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जडेजा ने पहले मैच से लेकर अब तक इकोनॉमिकल और राइट एरिया में बॉलिंग की। तो मुझे लगता है कि कंपोजिशन वाइज तो उनको चैलेंज करने के लिए आपको बहुत शानदार क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपको अटैकिंग जोन के साथ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। एज ए बैट्समैन आप ये नहीं सोच सकते कि अभी मुझे गलत बॉल मिलेगा तो मैं स्कोर करूँगा, वो आपको वो दे ही नहीं रहे अब तक के जितने मैचेस हमने देखे हैं। तो मुझे लगता है उनकी फास्ट बॉलिंग, उनकी जो स्पिन अटैक है वो एक राइट कंपोजिशन के ऊपर बेस कर रही है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है। बांग्लादेश से आई थिंक ये कर सकते हैं क्योंकि इनके पास लेफ्ट एंड राइट कंपोजिशन मौजूद है टैकल करने के लिए, लेकिन उसकी राइट प्लानिंग की जाए अथॉरिटेटिव वे में, या एक क्लियर हेडेड जो बैटिंग होती है वो की जाए। जिसमें मैंने पहले बात की कि बांग्लादेश की जब मैं टैलेंट पे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इनके पास टैलेंट मौजूद है, लेकिन जो मैंने पहले बात की कि जब आप राइट यूटिलाइजेशन नहीं करते टैलेंट की, उसको उसकी जगह नहीं मिलती परफॉर्म करने की, तो राइट रिजल्ट भी नहीं निकलते। तो मुझे लगता है कि आज के मैच को लेके येस इट्स लुक लाइक कि ये 300 वाला ग्राउंड है, जैसे बाजिद भाई ने बात की कि अल्टीट्यूड की वजह से येस इट फ्लाइज लिटिल बिट लॉन्गर, जो आपकी जो मिस इट भी है सम टाइम वो 6 हो जाती है। लेकिन इसको सारी चीज़ों को देख के इनकी बॉलिंग को जो अटैक जोन में रह के खेलने वाले स्किल्स हैं वो बांग्लादेश के पास मौजूद हैं, उन्होंने किया भी हुआ है। लेकिन देखना यह है कि आज वो किस तरीके से अपना स्टार्ट लेते हैं, चाहे बैटिंग पहले करें या बैटिंग बाद में करें। लेकिन मेरा अभी तक ये समझता हूँ कि अगर बैटिंग पहले की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है बांग्लादेश के लिए, तो ताकि प्रेशरलेस जो है वो इनिंग्स स्टार्ट करें और उनके बैट्समैन जो है विद फ्लेयर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स वाला जो एक एटीट्यूड होता है उसके साथ खेलें तो दे कैन चैलेंज 280 to 90। भाई यहाँ पे जो आपने लेफ्ट हैंड बैटर्स और राइट हैंड बैटर्स की बात की है, इंडिया के लिए जो यहाँ पे तगड़ी बात है, उनके राज भाई की भी टेक लेना चाहूंगा, वो ये है कि थ्रू आउट देयर ओवर्स व्हाट दे डू इज कि उनकी जब इकोनॉमी को देखते हैं तो वो भी कहीं समवट सिमिलर है, 22 और 25। उसके बाद अगर हम उनके इकोनॉमीज पे बात करें फेज वाइज भी तो 4.4, 4.6, 4.5, दैट्स इट। उसकी वजह यह है ना कि वो पार्टनरशिप पे बिलीव कर रहे हैं। पहले अगर इनकी फास्ट बॉलिंग पे चले जाएं तो सिराज और बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और वो अब तक के जितने भी मैंने देखा है कि वो बेहतरीन, वो डॉट बॉल की परसेंटेज उनकी बहुत हाई है। फिर जब उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही वो एक जोन ख़त्म होता है फास्ट बॉलिंग वाला, नए बॉल वाला, तो उनके पास जो स्पिनर आते हैं वो भी वो बॉलर हैं जो आपको बुरे बॉल नहीं दे रहे, वो फुल टॉसे नहीं कर रहे, वो कटे नहीं खा रहे, वो मुंह के नीचे बॉल करके आपसे ड्राइवर नहीं खा रहे। वो कह रहे हैं जी अगर आपने सिंगल भी लेना है ना तो आपको स्किल्स के ऊपर बेस करना पड़ेगा, हमें आप अटैकिंग जोन में रह के सिंगल ले सकते हैं, हम आपको सिंगल भी नहीं देंगे। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि काउंटर अटैक करने के लिए एज ए बैट्समैन जब तक आप स्पिनर के ऊपर चढ़ के क्रिकेट नहीं खेलते, जब तक आप उसके कंफर्ट जोन से उसको निकाल के उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालते, स्ट्रॉन्ग हिट्स नहीं मारते, स्पिनर तो वहाँ पे लगा रहेगा। वो कहेगा अच्छा जी अगर आपने ठक्का लगाना तो फिर ठक्का ठीक है, नहीं तो मुझे चार्ज करें। राशिद सर आपका इस पे क्या इनपुट होगा, बिकॉज बॉलिंग की तो हमने इंडिया की बात की है, बुमराह खास तौर पे जो है इस वक्त वर्ल्ड कप में सबसे इकोनॉमिकल चल रहे हैं। विद अ फिट बुमराह हाउ डेंजरस आर इंडिया लुकिंग इवन एट इन कंडीशंस लाइक पुणे जहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हो सकती हैं? हाफ फिट बुमराह भी इस वर्ल्ड कप में सक्सेसफुल है। हाफिज ने बहुत अच्छी बात की, इनकी बॉलिंग की, इनकी बैटिंग की। 2 दफ़ा टेस्ट हुई है वर्ल्ड कप में, एक पाकिस्तान वाला मैच जहाँ पे बुमराह के देख लीजिएगा 3.44। अब इस इकोनॉमी रेट में शुरू के 4 ओवर भी करते हैं तो प्रेशर तो आ गया ना। और आप बुमराह के अलावा भी देखें कि टॉप 5 जो यहाँ पे बॉलर्स हैं उनमें से
तीन जो हैं वो इंडिया के बॉलर्स हैं, बुमराह, जडेजा एंड कुलदीप यादव। तो इतनी इकोनॉमी ज़बरदस्त उनकी रही है कि वही बात आ गई कि डॉट बॉल्स के थ्रू भी दे क्रिएट सो मच प्रेशर। और इसमें जडेजा की बात करते हैं, दोनों पाकिस्तान के मैचेस भी शामिल हैं, कुलदीप यादव का भी। तो इनके जो इकॉनमी रेट है 3.9, 3.74, 3.44, ये वो मैच भी शामिल है जहां हमारी विकेट्स नहीं गिरी थी। क्या जहां विकेट गिरी इन्होंने विकेटें ली, वहाँ पे तीनों ने विकेट्स ली थी, 2-2 विकेट ली थी और वहाँ पाकिस्तान को किया। और अगला मैच बैटिंग में हम आ जाते हैं, जो कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही जी। 3 विकेट गिरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लोग, मैं कहीं पढ़ रहा था कि यार इंडिया टेस्ट नहीं हुई है अभी तक, 3 आउट हो जाए 10 रन से पहले, कैच छूट भी गया है, लेकिन 2 प्लेयर्स ने मैच ही निकाल दिया ना पूरा। एग्जैक्टली। और 200 रन चेज कर रहे हैं, 200 रन पे 7 बैटर्स के ऊपर, 3 तो आउट हो गए। तो ये टेस्ट था। तो भाई कितने ऑब्जर्व करते हैं प्रेशर को, प्रेशर में शायद बहुत अच्छा खेलना आता है इनको, आगे का पता होता है हमें गेम को किस तरह चलाना है। यही सक्सेस शायद इस टीम की है। अच्छा डरा बीके, रहे हैं राशिद भाई। अभी तक हमने डरा 3 के रख मैचेस दिया, में मतलब राशिद भाई सारा डराना कुछ तो बता दिया। खैर राशिद सर काफ़ी हमें हर शो में 1-2 दफ़ा ज़रूर इनकी तरफ से आता है, बट अभी तक इंडिया के अगर हमने जितने भी मैचेस देखे हैं चेस करते हुए जीते हैं और कन्विंसिंगली चेस करते हुए जीते हैं। इनकी बॉलिंग को अभी तक हमने डिफेंड करते हुए नहीं देखा है। आज डू यू थिंक कि बिकॉज हफीज़ का ये कहना था कि बांग्लादेश शुड पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड यू नो लेट इंडिया चेज अगेन, आपको लगता है आज भी यही, कंसिडरिंग द कंडीशंस, वो यही करेंगे, उनके माइंड में यही होगा? देखिए, कल अफगानिस्तान ने अपनी स्ट्रेंथ से हटके किया कि हम चेस करेंगे, शायद बांग्लादेश की भी यही, हमें लगता है यही स्ट्रेंथ है। इंडिया की जो राशिद भाई ने बात की, क्लैरिटी बहुत है। आप देखें, एक मैच में अश्विन खेलता है, एक मैच में शार्दुल खेलता है, लेकिन कोई ऐसे नहीं लग रहा कि अश्विन उठ के कह रहा है कि यार मुझे मैच खेलना चाहिए था, या कोई वो चीज़ नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले से टीम कॉम्पोजिशन में ये डिसाइड किया हुआ है और सबको कम्युनिकेट किया हुआ है। तो वो आपको लग रहा है कि बहुत ही सेटल्ड एक तरफ चल रहे हैं, बहुत सेटल्ड, सब कुछ उनका सेटल्ड चल रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश को मैं थोड़ी सी तशबीह जो दूंगा वो पाकिस्तान से दूंगा, उधर केओस है, एक प्लेयर ऊपर जा रहा है, एक प्लेयर नहीं खेल रहा हो, टूर्नामेंट से पहले कंट्रोवर्सी होती है। आज शायद कप्तान भी पता नहीं खेलते हैं नहीं खेलते, लेकिन सीनियर प्लेयर आप खिलाते हैं नंबर 8 पे, तो वो केओस है। तो शायद मुकाबला आज वो क्लैरिटी और केओस का भी होगा। उस केओस में इंटरेस्टिंग एक आधी आप ऐसी परफॉर्मेंस दे जाते हो कि जो अनएक्सपेक्टेड होती है, मतलब कोई एक बंदा ही, जैसे ये जो मैच जीते थे इंडिया के खिलाफ, उसमें मेहदी हसन मिराज ने अकेले ही मैच जिता दिया, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। बिल्कुल। तो बांग्लादेश अगर इनसे मैच जीतेगा तो इस तरीके से जीतेगा, वरना अगर आप एनालाइज करें इंडिया की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, वो सारा कुछ एनालाइज करें तो सारे बॉक्सेस टिक्ड हैं। जैसे राशिद भाई ने हमें डराया, वाकई अगर आप उनकी टीम को देखेंगे, बिल्कुल सही आप बॉलिंग को नहीं क्वेश्चन कर सकते, बैटिंग को नहीं क्वेश्चन कर सकते, तो वो उसमें उनकी पूरे 11 या स्क्वाड में कोई होल्स नजर नहीं आ रहे। एक शायद हफीज कहेंगे लॉर्ड शार्दुल को क्यों खिलाते हैं, लेकिन वो उनका अपना प्रोसेस है। बट कंप्लीट, जैसे हम साउथ अफ्रीका को 2 दिन पहले कह रहे थे कि ऑलमोस्ट कंप्लीट यूनिट है, मेरे ख्याल इंडिया इनसे बेहतर स्पिनर्स क्यों नहीं है, तो वो भी बहुत एज है। तो अगर आप मैन टू मैन देखेंगे तो बांग्लादेश के पास कोई चांस नहीं है, लेकिन केओस में जिस तरह आपने अभी डिस्क्राइब किया है केओस में अगर वो 1-2 प्लेयर कोई मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंस 2-3 या 1-2 प्लेयर कर दे, फिर चांस। यू कैन नेवर रूल दैट आउट। एग्जैक्टली। यहाँ पे रोआ, आपको नहीं लगता कि यार जब भी हम देखते हैं कि यार सारी स्ट्रेंथ वाइज सब डिपार्टमेंट्स चेक्ड हैं, तो मुश्किल होता होगा टीम के लिए भी डिसाइड करना कि यार आज हम किस स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करेंगे। इसके ऊपर जरूर बात करते हैं, बट वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट एंड स्वीट कमर्शियल ब्रेक। विल कम बैक एंड विल मूव ऑन टू मिस्टर राशिद लतीफ। प्लीज लेट्स गो। Alright, ladies and gentlemen, welcome back. Obviously, जो बात हो रही थी उसी के साथ वापस कनेक्ट करना चाहता हूँ। राशिद भाई यहाँ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि यार ये जो तीनों हम कहते हैं चारों शान चित, जो हमने शुरू से टर्मिनोलॉजी रखी हुई है, इसके पीछे उनकी सक्सेस का क्या राज है? जी राशिद भाई प्लीज। किसकी? ये इंडिया की बात नहीं, बाजिद ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि बांग्लादेश का अगर कहते हैं पॉलिसी ऊपर से बनती है, चेयरमैन से बनती है, क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटी से बनती है कि हमें कब तक फॉरेनर कोच लेना है। ठीक है। इसके पैरेलल अगर देखते हैं, इंडिया को भी देखते हैं, इंडिया पे बाद में आता हूँ, फिर पाकिस्तान को देखते हैं।
बोर्ड चेंज होते हैं, पॉलिटिकल रीज़न हो या कोई भी रीज़न हो, वो चेंज होते हैं। नीचे आपका फॉरनर कोच आ जाता है, क्या एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, पॉलिसी दी है कोई? ठीक है। अब प्लेयर अथॉरिटी प्लेयर्स है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, हमेशा जिस दौर में मैं खेला हूँ या हफीज़ खेले, कप्तान भी रहे, अथॉरिटी इनको चाहिए होती है और होनी भी इनके पास चाहिए। ठीक है। लेकिन हमें ऊपर से मैसेज मिलता है कि ये टीम खेलनी है, या जाहिर सी बात है जब कोच बोल रहा है इसका मतलब है ऊपर से आया कि ये टीम खेलनी है। जी। 3-3 प्लेयर अगर चेंज करोगे हर इवेंट में, हर मैच में, तो वो टीम कभी सक्सेसफुल नहीं होती। तो आप एक लिंक नहीं बनता, एक चेन नहीं बनती है आपकी। इसलिए एक टाइम होता है फॉरनर कोचेस का। हम मैच मतलब टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद ब्लेम किसको करेंगे? जी। कोच को करेंगे, क्योंकि वो यहाँ का नहीं है, या कैप्टन को करेंगे। अपने आप को हर कोई हर दौर में बचा के गया है। जी। हम इंडिया को देखते हैं, उन्होंने जॉन राइट का फैसला किया, उन्होंने चेपल का फैसला किया, उन्होंने गैरी कर्स्टन का फैसला किया, उन्होंने फ्लेचर का फैसला किया। अब नहीं करते, वो सीख गए, उन्होंने पता है। अब उन्होंने कहाँ डाला? अपने ग्रास रूट में तमाम फ्रेंचाइज को दे दिए। यार टॉप फ्लेमिंग वहाँ पे कर रहा है, हसन कर रहा है, बहुत सारे कोचेज वहाँ पे काम कर रहे हैं। ग्रास रूट पे ज़रूरत है ना वहाँ पे इन्होंने टेक ओवर कर लिया। रवि शास्त्री हो, कुंबले हों या राहुल द्रविड़ हों, ये बड़े हो गए हैं। अब हम कब बड़े होंगे भाई? यही फैसला करना है बांग्लादेश को और पाकिस्तान को। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक जो राहुल द्रविड़ की बात की, अंडर 19 का उन्होंने खुद फैसला किया था, उसके बाद फिर नेशनल साइड पे। अब सर जो आपने कप्तान की बात की है, जरा उससे कनेक्ट करता हूँ, हफीज भाई आपकी जानिब बढ़ता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की, और दुनिया बात करिए दैट द वे ही स्टार्टिंग, दिस वाजंट सर्टेनली अ स्टार्ट विद रोहित शर्मा वुड एक्चुअली कम अप विद इन एवरी गेम। अगर हम उनके सिर्फ पावर प्ले की बात करते हैं तो 3 इनिंग्स में 200 रन वो बना चुके हैं, टीम का स्ट्राइक रेट 107 का है। और अकेले रोहित शर्मा जिस तरह से लीड करे, आई थिंक दैट्स अ वेरी डिफरेंट आइडियोलॉजी ऑल टुगेदर। तो रोहित शर्मा 157 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, राइट फ्रॉम द वर्ड को ही इज शोइंग हिज एम्पिटस एंड इज मेकिंग श्योर दैट ही इज गोइंग टू हैव दैट इंपैक्ट। सो कैप्टन्स इनिंग्स देखें, रोहित शर्मा एक शानदार प्लेयर रहे हैं। आप उसके जब से उनका कैरियर 2006-07 से स्टार्ट हुआ, इन आउट हुए होते रहे, लेकिन जब से उन्होंने कंफर्म अपना स्लॉट लिया एज एन ओपनर, तो वो एक डिफरेंट लेवल के प्लेयर साबित हुए। अपने आप को इवॉल्व किया और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट के तौर पर उन्होंने इस टूर्नामेंट से पहले ये स्टार्ट किया था। और इस टूर्नामेंट में जो इम्पैक्ट है कि वो हो सकता है उनका आखिरी टूर्नामेंट हो वर्ल्ड कप 50 ओवर गेम। उसके बावजूद सोचें कि क्योंकि उनको पता है कि जब तक वो ये जोन नहीं हिट करेंगे, और उनको कॉम्प्लीमेंट करती है उनकी पूरी एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरे इस तरह के जोन में रह के खेलने में अगर मैं कामयाब नहीं होऊंगा, या मैं अगर मेरा फेलियर भी आ गया, तो मेरे पीछे बैठे हुए जितने प्लेयर हैं, जो साथ वाला शुभमन गिल है, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर या ईशान किशन खेले, या के राहुल या हार्दिक पांड्या, तो एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है जो उनको कॉम्प्लीमेंट करती है, या उनको बैकअप के तौर पर रेडी खड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का जो ये वाला जोन है ये रिक्वायर्ड था, और ये जितनी तारीफ की जाए रोहित शर्मा की वो कम है, कि उन्होंने राइट वे में अपने टैलेंट की यूटिलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डे क्रिकेट रिक्वायरमेंट जो है वो अडेप्ट की है, अपनी गेम को इवॉल्व किया है, और वो डरे नहीं हैं या वो घबराए नहीं हैं कि यार मैंने तो 10,000 रन किए हैं मैं उस जोन में रह के। गोगो उस वक्त भी बहुत अच्छा खेलते थे, अब उस वक्त खेलते थे ये 90 या 100 के स्ट्राइक रेट पे, अब खेल रहे हैं 150 के स्ट्राइक रेट पे। तो ये बदलने के लिए सिर्फ सबसे पहले आपने मैसेज देना अपने दिमाग को, उसके बाद जब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी पड़ी है तो आपने उसकी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश भी की है। तो मुझे लगता है कि इसमें मैं तो सिर्फ तारीफ कर सकता हूँ। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, क्योंकि कैप्टनसी का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने वर्ड यूज किया है, 100% अग्री विद दैट। और एज one of those responsibilities, BK, is assigning roles to all your batters, के no matter what kind of a start we get, हर प्लेयर को अपना रोल पता है। फॉर अब शुभमन गिल का एग्जांपल हमने लिया, ठीक है, फिटनेस अभी तक उनकी पूरी तरह वापस नहीं आई, लेकिन फिर भी ही नोज व्हाट हिज रोल इज एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। फिर नंबर 3 पे कोहली को पता है कि उन्होंने अपने कन्वेंशनल वे में एक इनिंग्स को बिल्ड करना है। श्रेयस अय्यर एट नंबर 4 हैज़ ऑल्सो शोन अ लॉट ऑफ प्रॉमिस इन दैट इंडिया बैटिंग ऑर्डर। लास्ट मैच में हमने देखा उन्होंने इवन दो शुरू में उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर सके 1-2 मैच, लेकिन लास्ट मैच में जिस तरह उन्होंने फिनिश किया अगेंस्ट पाकिस्तान, उनका नंबर 4 पे आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन दैट इज़ बीइंग डन टू हिम कि आपका भाई ये रोल है, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ अ स्टार्ट वी गेट, श्रेयस का एक डिफाइंड जो रोल है इस टीम के अंदर वो ये है। देखिए, पिछले कई साल से ना ऐसे इंडिया पीछे रह गई थी। इंडिया इस तरह पीछे रह गई थी कि वनडे क्रिकेट में ज़रा डिफेंसिव खेलती थी, उस तरह जिस तरह हफीज़ बता रहे हैं उस तरह नहीं खेलती थी। प्लेयर बहुत बड़े थे लेकिन अप्रोच डिफेंसिव हो गई थी। रोहित की अगर हम बात करें तो
सारी ज़िंदगी बिफोर बिकमिंग कैप्टन या सारी ज़िंदगी उसने बैटिंग ऐसे की थी कि पहले 20 बॉलों में मैंने आउट नहीं होना, उसके बाद मैं देख लूँगा। वो जो फेयर था ना पहले 20 बॉलों का, वो उसने ओवरकम किया है। और ओवरकम एकदम नहीं हुआ। जब भी कैप्टन बना है इसने ये थ्योरी अडॉप्ट की कि जी भाई शुरू से ही हमने या कंडीशंस हो या जैसे भी हो हम थोड़ा तेज खेलना है। और उनको फेलियर्स भी बहुत हुए हैं बिफोर, फेलियर्स मिले, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुआ। लेकिन मैसेज ये गया कि जी मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया हूँ। तो जब वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए तो वो मिडिल ऑर्डर से भी डिमांड कर सकते हैं, तो उस तरह करना है। तो वो रोहित में इसमें बहुत बड़ा उसका रोल प्लेइंग है। कल तो चालान भी हो गया इसका। लो जी, गलती होगी, मैं 10 बैठा। दूसरी बात, एक मैं कल यहाँ पे एक प्लेयर आया था, राशिद भाई ने उसको एडवाइस दी। उसको एडवाइस यही दी कि जी आपके जो पेरेंट्स या वालिद साहब या आपको क्रिकेट खिलाते हैं तो उनका तो यही होता है कि जी आप आउट नहीं होना जी, ये फेयर निकालना है। राशिद भाई ने उसको एडवाइस ये दी, छोटा सा प्लेयर, नया प्लेयर था, उस छोटा सा प्लेयर नहीं नया प्लेयर था, उसको ये एडवाइस थी जो फेयर रोहित ने निकाला अपनी बैटिंग से। रोहित हालांकि मेरे ख्याल से जब वो 20 बॉल लेता है तो उसके बाद उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं, लेकिन उसने अपनी बैटिंग चेंज की, अपने आप को मतलब हाई रिस्क पे लेके गया कि शायद मैं आउट हो सकता हूँ, बिकॉज टीम का कल्चर वो चेंज करना चाहता। जबरदस्त जी। मैं एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। राशिद भाई के ज़हन में भी एक बात है और कुलदीप यादव के वाले से जरूर बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि जब से मैंने थोड़ी सी पेस बढ़ाई है मेरी विकेट टेकिंग एबिलिटी भी मुझे बढ़ती नजर आई है। गेम ऑन, आई डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। जी, वेलकम बैक टू गेम ऑन एयर। वी आर बिल्डिंग अप टू इंडिया वर्सेस बांग्लादेश इन पुणे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इंडिया के स्क्वाड की। ऑफ कोर्स उनकी जो बड़ी ऑब्वियस स्ट्रेंथ्स नजर आती हैं वो उनकी बैटिंग में तो आती ही हैं, जिस तरह रोहित शर्मा की फॉर्म पे हमने बात की, बट ऑन द फ्लिप साइड उनकी जो बॉलिंग है दैट हैज आल्सो इंप्रूव्ड a great deal, especially with Jasprit Bumrah being in sublime form and making that comeback after his injury. तो यहाँ पे बहुत बैलेंस्ड टीम नजर आ रही है इंडिया। अब अगर हम नज़र डालें बांग्लादेश के टीम के ऊपर, यहाँ पे बीके बांग्लादेश इज़ लुकिंग, अगर हम उनकी बॉलिंग के बारे में पहले बात करें, विकेट्स तो ले रहे हैं लेकिन they're also conceding runs. They're unable to really contain the other team. अगर सामने इंडिया के बैटर्स हैं, they will really need to up their game, चाहे वो स्पिनर्स हों चाहे वो पेसर्स हों। क्या डिफरेंट करना चाहिए आज बांग्लादेश के बॉलर्स को, क्या गेम प्लान होना चाहिए? बिकॉज एज वी टॉक अबाउट, हिटमैन इज इन सबलाइम फॉर्म। शुभमन गिल जब स्टार्ट होते हैं वो अपना राइट फ्रॉम द वर्ड गो ही इज अटैकिंग। ये आपके सामने स्टैट्स भी हैं पेस के और स्पिन के। यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमी जो है इट इज़ नॉट रियली लुकिंग एज गुड एज इंडियाज इन कंपैरिजन। तो बीके, हाउ व्हाट डिफरेंट शुड बांग्लादेश बी डूइंग इन देयर बॉलिंग? देखिए, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में वो है तस्किन का। तस्किन इनका लीडर ऑफ द अटैक। पेस बॉलिंग का आपने देखा कितना डिफरेंस आया जी। तस्किन बिफोर द वर्ल्ड कप बहुत अच्छी फॉर्म में था, टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप इनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी फॉर्म में थी और तस्किन लीडर ऑफ द पैक था, विकेटें भी ले रहा था, इकोनॉमी भी कम थी। इस वर्ल्ड कप में शायद ऐसे लगा कि इसकी पेस थोड़ी सी, जब तस्किन की पेस ड्रॉप होती है तो वो बॉलर नहीं रहता। पेस ड्रॉप हुई है और शॉर्ट ऑफ लेंथ कर रहा है, लेकिन शॉर्ट ऑफ लेंथ जो उसकी कर रहा है क्योंकि पेस कम हो गई है थोड़ी सी, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ जो है वो उतनी कामयाब नहीं है। जब ये आउट करता है तो फुलर बॉल पे आउट करता है, लेकिन सेटअप शॉर्ट बॉल से ही करता है। लेकिन अमूमन इसके साथ ऐसे होता है, एक दो दफ़ा पहले भी ये टीम से बाहर इसीलिए हुआ है क्योंकि जब इसकी पेस कम हो जाती है इतना पोटेंट नहीं रहता। मसला वहीं से शुरू होता है क्योंकि मेन बॉलर तस्किन था जो इनको लीड कर रहा था टूवर्ड्स द वर्ल्ड कप। अब वो पेस कैसे, रिदम कैसे वापस आती है या कब वो हिट करता है, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हो गया है। ऐसे लग रहा है कि अब जो मुस्तफ़ीज़ और शरफुल हैं वो उससे बेहतर बॉलिंग करने लग गए हैं, लेकिन बांग्लादेश का बीइंग पोटेंट और बॉलिंग यूनिट का सक्सेसफुल होना तस्किन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग को लीड करता है। स्पिनर्स अभी भी ठीक बॉलिंग कर रहे हैं। शाकिब जब खेलता है या अगर खेलेगा तो वो बॉलिंग आपको पता है शाकिब कैसी करेगा।
लेकिन क्योंकि फास्ट बॉलिंग उनको वो इम्पैक्ट नहीं दे रही और रन्स हो रहे हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा एक और जो प्रॉब्लम है कि स्पिनर वो दूसरा खिला नहीं सकते, क्योंकि महमूदुल्लाह को 8 नंबर पे वो बैटिंग करवा रहे हैं, तो नसुम जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो नहीं खेल सकते। जो उनके दूसरे ऑफ स्पिनर हैं, जो मेरे ख्याल दोनों जो पिछला मैच जो एशिया कप में जो जीते थे तो वो दोनों खेले थे, तो वो दोनों टीम में उनकी जगह नहीं बनती जब महमूदुल्लाह को आप 8 नंबर पे खिलाओ। और शाकिब अगर नहीं होते हैं फीस आज की गेम में, तो वो जो हॉलोनेस है, वो जो वॉइड है, मजीद वीकन कर देगा उनकी बॉलिंग को। उसको कैसे फिल कर रहे हैं बांग्लादेश? नहीं, श्योरली वो तो बहुत बड़ा मिस होगा बांग्लादेश के लिए, क्योंकि शाकिब सिर्फ एक स्पिन बॉलर नहीं है। तो इन टीमों में, या इवन पाकिस्तान को भी अगर मैं देख लूँ, कि पाकिस्तान के बाद बाबर के बाद कोई कप्तान रेडी नहीं है। अनाउंस हुआ है, लेकिन कितने मैचों में वाइस कप्तान ने कप्तानी की हुई है पता ही नहीं। तो अगर जब उसको करनी पड़ जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर समझ ही नहीं आएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो ये मसला इनके साथ भी हो सकता है कि इन्होंने कोई दूसरी अपनी वो जो वाइस कप्तानी की जो डेवलपमेंट है वो की नहीं हुई, तो ये मसला आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत आसान होगा किसी के लिए भी, चाहे कोई सीनियर हो चाहे कुछ जूनियर वाइस कैप्टन। हालांकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इतना अच्छा लोकल टैलेंट हमें देखने को नजर आता है, बट वही बात है कि वो सिर्फ डोमेस्टिक तक ही महदूद है। इंटरनेशनल पे उस तरह से वो टैलेंट जो है वो डेवलप होकर नजर नहीं आ रहा। नहीं, वो मैनेजमेंट का काम है ना, कि एक टैलेंट जब आपको नजर आ जाता है, उसको प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस है वो मैनेजमेंट का काम है। ट्रू। तो अनफॉर्चुनेटली हम सब कॉन्टिनेंट की बहुत सी टीमें, ये चीज़ इंडिया ने सीख ली है। इंडिया ने अपने बेंच स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा राइटली यूटिलाइज किया। अपने वो प्लेयर जो इस कंडीशन में उनको ज़रूरत थे कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए, जो राइट कॉम्पोजिशन बनाने के लिए, जैसे कुलदीप यादव हैं, जब वो बाहर थे तो वो बैड फॉर्म की वजह से थे। फिर उनके साथ बात करके उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी के सिस्टम के साथ टच किया और उनके साथ काम किया। उन्होंने कुछ 6 माह 8 माह वहाँ पे गुजारे और अपनी पेस और अपनी राइट टेक्निक और वो जो टेक्निकल इशू उनके आ रहे थे उसको रेक्टिफाई करके दूर किया। तो यहाँ पे उनके सिस्टर ने भी रोल प्ले किया टू डेवलप द प्लेयर इन अ राइट वे, जो ज़रूरत थी इंडिया की टीम की। पाकिस्तान के पास भी ये मिसिंग पार्ट है, हमारे पास नेशनल एकेडमी तो ज़रूर है जी, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस के थ्रू नहीं हो रही। वहाँ पे इवेंट्स होते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं है। ठीक है। तो इसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर भी ये इशू आ रहे हैं आपको, कि वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो 1-2 प्लेयरों के गिर्द तो घूम जाता है, लेकिन उसके बाद की जो रिप्लेसमेंट्स हैं, उसके बाद की जो प्लेयर डेवलपमेंट है वो रुकी हुई है। एंड इट्स ऑलवेज दी 100% प्रोसेस रोहा, मतलब वो प्रोसेस में से अगर हम 20% भी टेक अवे करेंगे तो वी माइट नॉट इवन गेट दैट फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे जहाँ हम बांग्लादेश की बॉलिंग की बात करें राशिद भाई, वहाँ हमने ये देखना है कि ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया के जो 3 मैचेस हुए, इनके अंदर 3 इनिंग्स के अंदर इन्होंने 30 में से सिर्फ 9 विकेटें गंवाई हैं। उनमें से हर मैच के अंदर भी अगर हम देखें तो 4 से ज्यादा उन्होंने विकेट्स गिराई नहीं है। तो बांग्लादेश की बॉलिंग के लिए शायद ये चैलेंज जरूर हो। अब अगर हम बैटिंग की तरफ आते हैं तो वहां पे सिर्फ मुशफीक नजर आते हैं विद 250s, नॉट जस्ट दैट। फिर वो जो उन्होंने बात की थी कि इनके रन ऑर्डर के अंदर, या हम प्लेइंग 11 की बात करें, नंबर शायद सही तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहे। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि यार यहाँ पे किस किस्म के चेंजेस ये अडॉप्ट कर सकते हैं? सिर्फ बैटिंग में डाउन दी ऑर्डर तो नहीं रिलाई कर सकते। देखिए, तौहीद की जिसकी बात की थी वाहिद ने, वो एशिया कप में ऊपर खेले थे, 185 रन किए थे, ठीक शाना ने आउट किया था उनको उन्होंने फाइंड कर लिया, तो उनको पूरा वर्ल्ड कप उस नंबर पे खिलाएं। अनलेस 3, 4, 5 इनिंग्स हो जाती हैं उसके बाद आप उसको नंबर, फिर महमूदुल्लाह का नंबर भी ठीक नहीं है, 8 नंबर पे आप उनको खिला रहे हैं। बॉलिंग ऑफ स्पिनर एक मौजूद है, मेहदी हसन अगर बॉलिंग कर रहा है, साथ में ये कर रहे हैं, ये अंदर बॉल ज़्यादा ब्रेक नहीं होती, ये इकॉनमी बेस हो जाती है। जो बात की मौसम नसूम की बात की है, डोमिनेट जो बांग्लादेश में किया है इन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर से ही किया है। जब होम खेलते हैं तेजुल एक एंड से लग जाता है, सुबह से लेकर शाम तक बॉल करता है, उसमें शाकिब भी अमल दखल इतना नहीं किया था, क्या कि वो एक एक्यूरेसी थी उसके। ट्रू। यहाँ की जो पिचेस हैं ये टेस्ट बॉलर के लिए बहुत मौफिक है, तो तेजुल को या नसूम को 2 स्पिनर इनके खेलने चाहिए जो अवे ब्रेक करें राइट हैंड बैट्समैन को। 2 जो कर रहे हैं इसे रन भी कराना चाह रहे हैं, और आप आउट तो कर ही नहीं सकते 10 प्लेयर्स। 10 अफगानिस्तान आउट हो गई, मार के आउट हो गई आपको। जब आप 10 आउट नहीं करेंगे इसका मतलब है आप 300 प्लस करवा रहे हैं। एग्जैक्टली। आपके पास बॉलर और स्पिनर्स ऐसे होने चाहिए जो अवे करते हो राइट हैंड बैट्समैन को। आपके पास एक स्पिनर होना चाहिए जो कि ऑफ स्पिनर है, जो कि मैचअप करते हैं जब लेफ्ट हैंडर को आ जाता है। सेम चीज़ बैटिंग में भी है, स्टार्ट अच्छा होता है इनका, लेकिन एक ही मोमेंटम से खेलते हैं, शुरू से आखिर तक एक मोमेंटम होता है। अब रोहित शर्मा ने अगर चेंज किया अभी अपना गेम, जिस तरह से बात की उन्होंने बहुत खूबसूरती से बयान किया कि किस तरह से उन्होंने अपने आप गेम को चेंज किया है। ये लोग तैयार नहीं है चेंज करने के लिए,
और मिडिल में भी आते हैं तो अपनी बैटिंग करते हैं और लंबी इनिंग्स नहीं करते। सिर्फ शाकिब या मुशफिक 2 ऐसे प्लेयर्स हैं सीनियर हैं जिन्होंने दोनों के मिला के 14,000 रन है। बहुत भारी जिम्मेदारी है, लेकिन वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। एग्जैक्टली। हफीज़ ने जैसे कहा कि 19 का वर्ल्ड कप दोनों ऊपर खेल रहे थे, अब तो आपको संभालना चाहिए ना, एक 3 खेले 4 खेले 4 खेले या 5 खेले, आप 6-7 पे चले जाते हो तो टीम तो आपकी आधी आउट हो जाती है। अपने 50 रन करते हो तो इसमें क्या आ जाता है, फिर आपका जो कोचेज आ जाते हैं, कोचेज आपके फॉरनर हैं, क्या उनको आप संभाल नहीं सकते? जो कोचेज बाहर के हों और प्लेयर को ना संभाल सके, समझे कि ऊपर से वो भी मिले हुए हैं। एग्जैक्टली बाजिद भाई, इसी को कंटिन्यू करते हो क्या मुशफीक अब दी ऑर्डर, क्योंकि जो 2007 ट्रिनिडाद की बात की, शकीब और मुशफीक उस टाइम बड़े यंगस्टर्स थे जब उनकी इंक्लूजन हुई थी स्क्वाड्स में, आपको लगता है कि शायद अब दी ऑर्डर ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मुशफीक की 250 है, जहां मैंने इंडिया का तस्करा किया कि 30 में से 9 विकेट्स गंवाई हैं, वहां इंडिया ने 30 में से 28 विकेट्स ली भी हैं, ये भी याद रखना बड़ा जरूरी है प्लीज। देखिए ये ट्रेंड जो है ना, ये एशियन ट्रेंड है। जब प्लेयर आता है ना, बाहर का ट्रेंड देखें वो डिफरेंट है। जब एक प्लेयर नया प्लेयर आता है ना तो उसको ऊपर खिलाते हैं, छठे से शुरू नहीं होता। सही है। आप ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड देखें, वो प्लेयर इंट्रोड्यूस करते हैं छठे पे, जब वो फिर रन्स कर लेता है फिर वो ऊपर जाता है। हमारा प्लेयर इंट्रोड्यूस होता है तीसरे पे, ओपन पे, फिर वो नीचे की तरफ आता है। बांग्लादेश बिल्कुल वैसे ही है, जब नए प्लेयर आए तो उनको ऊपर खिलाया। अब साकिब जब कैप्टन नहीं थे तो ऊपर खेल रहे थे, तो अब जब वो कैप्टन हो गए तो वो अपने आप को नीचे, मुशफिक भी ऐसे नीचे आ गए हैं। तो मोस्टली कैप्टन जब भी कप्तान बने तो अपने आप को उन्होंने नीचे धकेला है, और ये आप इनके सीनियर प्लेयर्स का मसला रहा है। एवरेज तो बहुत अच्छी है, रन्स मतलब 59 की एवरेज है, लेकिन रन्स ये बना कब रहे हैं जब आधा मैच निकल चुका है, ये नीचे आउट हो चुके हैं काफी सारे खिलाड़ी। आपने मतलब 25 ओवर हो गया ना, तो मतलब 1/4 ऑफ द मैच खत्म हो चुका है जब आपने इम्पैक्ट डाला है। तो वो उस उधर से फिर आपको बहुत ही बड़ा है, मतलब आपने क्वार्टर क्या आपने 50% मैच कवर करना है अपनी बैटिंग से, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालना। Exactly, and it's all about taking and handling that pressure, and unfortunately if you're chasing, I think at that occasion जो अभी बाजिद भाई ने जिसकी तरफ डायरेक्ट किया हो, I think it gets difficult for any player कि यार अच्छा अभी 200 रन और बनाने हैं, and then we only have 5 or 4 wickets in hand. Ladies and gentlemen, यहाँ पे हम जरा एक वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जब वापस आएंगे तो 122 yards की बात करेंगे, which always happen to be the most important. Game on है। All right, ladies and gentlemen, well, that's it for the pitch report, and certainly it's not for me or Roha to kind of say whether people will be able or players will be able to score 300 plus just like the previous 3 innings. The first innings, let's be very precise about it. So, मैं जरा राशिद भाई की जाने बढ़ता हूँ। राशिद भाई, उन्होंने जो नॉक करके दिखाया, उन्होंने कहा हार्ड है, प्लेन है, उन्होंने कहा लाइन वेरी करनी पड़ेगी, पेस वेरी करनी पड़ेगी, लेंथ वेरी करनी पड़ेगी टू मेक श्योर दैट यू गेट दोज डॉट बॉल परसेंटेजेस हायर। मूवमेंट कितनी ये देखना पड़ेगा ना, ईस्टर्न साइड है ये इंडिया की, और थोड़ा हीट भी होगी यहाँ में भी। महाराष्ट्र है ये जी। अब हम लोग वहाँ से मैच देखते हुए आ रहे हैं, नॉर्थ पे देख रहे हैं और साउथ पे देखते हुए हैं, ये पहला मैच इस साइड पे हो रहा है, थोड़ी सा हीट भी होगी, पिच अच्छी होगी, इसका मतलब है जैसे ये बता रहे हैं बाजिद की बूटी ने काम किया जी। तो इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज, नो डाउट। बांग्लादेश के बैटर्स भी अच्छा बैटिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल राइट ऑफ करें, लेकिन इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। वो कोशिश करते हैं इनसे, बांग्लादेश की टीमों स्पिनर्स अच्छे हैं तो ऐसी फ्लैट पिच बनाए कि न्यूट्रलाइज कर दें उनके स्पिनर। लेकिन ये तो ऐसी इवेंट है। किसने कहा? I think यहाँ पे फिर देखो अहमद बताओ क्या होता है, ये मेरी मिस्टेक है, हफीज ने सही पकड़ा। हमें बूटी जहाँ से मिलती है ना, वो कुरेटर वहीं का ही है। एग्जैक्टली। अच्छा हफीज भाई, आपकी जाने बढ़ते हैं। देखें फॉर एनी प्लेयर, अब जब चूंकि हम पुणे की बात करें, एसआर वेन्यू इस पे अभी इससे पहले हमने आईसीसी की गेम नहीं देखी है, ठीक है, तो किसी भी प्लेयर के लिए नए वेन्यू पे जाना, बेशक इट्स योर होम कंडीशंस, अडेप्टेबिलिटी में टाइम तो लगता होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता इंडिया के लिए कोई मुश्किल होगी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले यहाँ पे बहुत से मैचेस खेल लिए होंगे। आप कहीं पे भी चले जाएं, है तो इंडिया ही। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि ऐसी पिच एक्सपेक्टेड थी कि इंडिया जब भी ऐसी लो रैंक टीम के साथ खेलेगी वो कभी भी चांस नहीं देंगी
मैच को इवन या 60-40 होने की। ठीक है। वो कोशिश करेंगे कि बैटिंग ट्रैक हो, बैटिंग ट्रैक पे इंडिया बहुत सुपीरियर साबित होगा। बैटिंग फर्स्ट इज़ टू मी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, नो मैटर कौन सी टीम टॉस जीते, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उस 10 या 15 ओवर के ड्यू फैक्टर के लिए आप 85 ओवर या 75 ओवर ज़ाया या उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें या उसको वेस्ट ना कर दें। सो यूज़ द बेस्ट कंडीशन एट द मोमेंट विच लुक्स टू मी बैट फर्स्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। एग्जैक्टली। हम जरा एक छोटी और स्वीट सी कमर्शियल ब्रेक की जानिब बढ़ना चाहते हैं, वापस आएंगे बाजिद भाई से भी पूछते हैं। गेम ऑन है। All right, ladies and gentlemen, so the last encounters that we witnessed of the ODI games were in between England and India over here, back in 2021, I believe. बट यहाँ पे शहजाद, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर बीके, बिकॉज ये बात हमने ब्रेक से पहले भी की थी, स्टार्ट ऑफ द शो भी की थी कि यहाँ पे रोहित शर्मा का बहुत हाई एवरेज नहीं है पुणे में। लुकिंग एट द पिच नाउ, डू यू थिंक एक चांस है फॉर हिम टू करेक्ट दैट रिकॉर्ड, मेक सम मोर रन्स? देखिए हर जगह वो रन्स करते हैं, मतलब पिच वगैरह उसमें मतलब समझ नहीं आती कि क्यों नहीं है। शायद ऐसा ग्राउंड है, कई ऐसे ग्राउंड होते हैं जहाँ पे सारे चीज़ आपकी तरफ होती है लेकिन आपसे रन्स नहीं होते। जैसे कोहली के लिए अहमदाबाद, हर जगह तो आपसे रन्स नहीं होते। बट रोहित शर्मा जो इस सबने वर्ल्ड कप में देखा है कि जो शॉर्ट ऑफ लेंथ और लेंथ बॉल बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं, और ये भी ट्रू विकेट है। आपने देखा साइड की बाउंड्रीज छोटी हैं, तो बांग्लादेश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी बॉलिंग करें तो स्पेशली फास्ट बॉलर्स थोड़ा सा फुलर साइड पे रहें, क्योंकि जब भी उसको लेंथ बॉल या शॉर्ट बॉल मिल रहा है वो ग्राउंड से बाहर ही जा रहा है, तो मुश्किल है। मतलब जाहिर है डायमेंशंस भी ऐसी हैं और पिच भी इतना अच्छा है। वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको वेरी करनी होगी पेस, प्लस स्टंप्स में आपको बॉलिंग बहुत ज़रूरी है इधर, जो क्योंकि बॉल बल्ले पे आ रहा है तो विड्थ या लेंथ आपको मिली तो उस पर बहुत रन होने हैं। तो बांग्लादेश के लिए चैलेंज बहुत है, क्योंकि आमतौर पे हम एसोसिएट करते हैं इंडिया को बहुत अच्छी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी बैटिंग जब उनको कंडीशंस ऐसी मिल जाएं तो वो फिर छोड़ते नहीं है। अच्छा, अभी तक तीनों मैचेस वही बात दोबारा कि इंडिया ने चेज करते हुए जीते हैं। आज इन कंडीशंस में फिर से डू यू थिंक कि वो वही करना चाहेंगे टॉस जीत के, क्योंकि ये एक आइडियल मौका है टू विन द टॉस एंड पुट सम रन्स ऑन द बोर्ड? नहीं, ये तो हम कह रहे हैं ना कि आइडियल मौका है कि पिच बहुत अच्छा है, बट इंडिया पहले देखेगा कि हम मैच किस तरह जीत सकते हैं और हम पॉइंट्स कैसे हासिल करते हैं। बेस्ट हमारी जो टैक्टिक है, अपनी टीम की स्ट्रेंथ देखेंगे कि हमारी टीम की स्ट्रेंथ 2 पॉइंट्स हासिल करने वाली कौन सी है। आया उसमें बैट फर्स्ट फिट होता है, या वो समझ रहे हैं कि बैट फर्स्ट करना हमारी जो 100% स्ट्रेंथ है शायद 99-98 पे आ जाए, तो वो चांस नहीं लेंगे। फुल बैटिंग विकेट है वो ठीक है, बट इंडिया का जो सबसे पहला कंसर्न होगा कि हम उतने पॉइंट्स ले लें कि हमारी क्वालिफिकेशन पक्की हो जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि शायद कोई वो चेंजेस करें, शायद इन प्रिपरेशन फॉर द सेमीफाइनल हम बैट फर्स्ट कर लें या प्लेयर्स चेंज करें। उससे पहले आई डोंट थिंक कि इंडिया एक भी ऐसा डिसीजन लेगा जो कि उनको स्लाइट डिसएडवांटेज नहीं कह रहा, लेकिन स्लाइट उनकी स्ट्रेंथ से थोड़ा सा हटाए। So they won't be complacent of this fact. तो हफीज भाई, आपका क्या टेक है कि इस पिच के ऊपर इंडिया अगर टॉस जीतता है तो क्या करना चाहिए, एंड सेम गोज फॉर बांग्लादेश? मैं तो दोनों के लिए समझता हूँ कि बैटिंग फर्स्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आप चाहेंगे कि आप दोनों तरीक़ों से टेस्ट होके जाएं। यस, 2 पॉइंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा मौका दें जहाँ पे कोई बांग्लादेश, जो इसने पहले भी अभी एशिया कप का मैच जीता हुआ है, वो दोबारा से इनको चैलेंज कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि बैटिंग फर्स्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। एग्जैक्टली। राशिद भाई, आप अभी हमें नॉर्थ से लेकर आए हैं यहाँ तक पुणे तक, तो कंडीशंस का क्या इम्पैक्ट होगा, और उन कंडीशंस जो हम डे एंड नाइट की बात करते हैं? मार्जिन ऑफ डिफीट या विन बहुत मैटर करती है। कल 1.92 का नेट रन रेट हो गया न्यूजीलैंड का। सही। नंबर 1 कौन होगा आज का मैच डिसाइड कर सकता है। बिल्कुल। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 4 जब आएंगे कौन किससे खेलेगा ये भी मैटर करता है। तो आज का मैच इस लिहाज से जीतना भी ज़रूरी है, स्ट्राइक वो नेट रन रेट को मेंटेन भी रखना ज़रूरी है। इंडिया बैटिंग कर, मैं जितनी भी बड़ी टीमों के हवाले से आप कहते हैं इंडिया को बैटिंग करनी चाहिए। बांग्लादेश को एक ही चांस है, शायद दूसरी बैटिंग में जीत सकते हैं।
बांग्लादेश के पास एक यही ही चांस है। चांस है, मतलब ये पहले बैटिंग से करके इंडिया को आउट करना थोड़ा सा पॉसिबल हर चीज़ है जी। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। दूसरी बैटिंग में होता है कि दो प्लेयर की अगर लगना शुरू हुए फिर रुकते नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है। और बांग्लादेश में ऐसे प्लेयर कुछ हैं जो कि अगर 300 सवा 300 का अगर मिल रहा है टारगेट, जो कि हमें लगता है कि ज़्यादा का मिलेगा, ठीक है, तो वो एक डेंट दे सकते हैं ड्यू इंडिया का को। क्या फैक्टर हो सकता है अगले ड्यू का फैक्टर उस वक्त आएगा जब 20 ओवर हो जाएंगे। लोग गलती क्या करते हैं कि हम ड्यू फैक्टर की वजह से जा रहे हैं, आपके 15 ओवर में 5 बाहर हो जाते हैं नए बॉल से, दोनों एंड से न्यू बॉल है, ये अभी ड्यू पड़ते नहीं, मैच खत्म हो जाता है। मैच खत्म हो जाता है। वाकई वैसे हम वेट कर रहे होते हैं, लाइट्स ऑन होगी, ड्यू अगर पड़ेगी। मेरे अगेंस्ट एलन डोनाल्ड है, फानी डिविलियर्स बॉलिंग कर रहा है, शॉन पॉलक कर रहा है, शाम को बॉलिंग है, तो मैं ड्यू का वेट थोड़ी करूंगा। हम लोग कराची लाहौर में ड्यू बहुत पड़ी थी जी। एक पहले ओवर में शॉन पॉलक ने 4 आउट किए थे, अभी तक यूट्यूब पे पड़े हुए वो। यानी वो कि हमारे ध्यान से नहीं निकल रहे। लेकिन राशिद भाई असल सवाल आपने हमें कहाँ है, नॉर्थ से हम कहाँ गए हैं? ईस्ट ये मैं जहाँ असल तक सवाल ये है रायचा कि जो जो बता वो लिस्ट आई थी मेरे पास लखनऊ की, जी खानों की ये यहाँ पे लिस्ट चलेगी कि यहाँ पे वो क्लास पुणे में नहीं, नहीं, कुछ चने अच्छे यहाँ हैं। पे आपको भेलपुरी। मोटरवे के जरिए मुंबई जाना पड़ेगा और खाने वहाँ- के लिए पुणे के अंदर आना चाहिए। 225 क्लॉक करके आई थिंक हमें 225 यार क्लॉक इसमें आज ना डाटा में ज्यादा फंस गए थे, मिसप्लेस हो गए थे। पुणे में सर कुछ स्पेशलिटी तो नहीं, बताए जो अभी- लोग अभी गए हुए नहीं। वो उनके लिए शायद मुस्तफीद हो जाए, वो भी काफी वहाँ पुणे की डेलिकेसी से। आपने साउथ इंडिया का पूछा नहीं, जहाँ पे सबसे अच्छा वो जब जाएंगे लेट सर हो फिर गया ना, वापस ये जाएंगे तो सवाल ये पूछ है। लेंगे साउथ सर। इंडिया मुझे तो आउट- डोसा पसंद है। डोसा? मैं दिल्ली में इडली जाऊँ डोसा डोसा तो पूछा ही नहीं आपने, आप पुणे आ गए। आउट ऑफ बॉक्स सवाल नहीं करता। अच्छा चले ये बताए मैच से पहले, अब चूंकि आप सारे खेले हैं, देखो मैच से पहले मैच से आप पहले विव रिचर्ड चावल खाते थे, सबको खाने चाहिए। ठीक है मैच सिर्फ से चावल पहले और सर वो ऐसे ही मजाक बनाना कर- हम देखते हैं हमेशा के प्लेयर बाहर जाता है, केले खाता है, फिर वापस इंस्टेंट एनर्जी के लिए वो भी हैंडी आते हैं कौन? केले यार प्लेयर्स बहुत यूज ये करते ये हैं। तो वो लेके आए थे अपना, टेनिस प्लेयर्स होते हैं ना, वो वो लेके आए क्रैम्प्स थे के लिए आई थिंक बहुत जरूरी वो होते हैं कि उसके लिए आप ये थे, अच्छी हाँ। बनाना डाइट हो। नहीं, रिजवान मेरे- प्रोबेबली ही शुड बी हैविंग अ लॉट मेरा ऑफ टॉपिक नहीं है ना ये मेडिकल साइंस और ये वो, जब भी मैं थोड़ा खाने हल्का पीने हूँ। की तो है ना सर, नहीं खाने पीने लखनऊ का कीमा की बात हुई थी। नहीं खिलाते हैं, खाते नहीं है। पर ठीक है, आपकी हम मैं वेट बताता करें हूँ, कि आपके पास वसीम होगी भाई- ये। जी न्यूज़ फ्रॉम पुणे इज दैट बांग्लादेश हैव वन द टॉस एंड दे विल बी बैटिंग फर्स्ट। यहाँ पे वही बात बीके जो हम कर रहे थे, इंडिया के पास एक और मौका है नाउ टू चेज एंड टू कैरी ऑन दैट मोमेंटम। क्या लगता है ये डिसीजन जो है, बिकॉज अभी तक टॉस का हमने जो स्टैट्स देखे हैं, मोर टीम्स दैट हैव लॉस्ट द टॉस हैव एंडेड अप विनिंग। विल दैट बी हैपनिंग अगेन टुडे? लेकिन देखिए रोहित बड़ा खुश था, वो तो कहता था कि हमने फील्डिंग ही करनी है, हमें चेस पे ही जाना है, तो वो उसका तो अरमान पूरा हो गया। अब देखना बांग्लादेश ने टॉस जीत के बैटिंग तो की है, लेकिन बैटिंग कितनी अच्छी करते हैं वो देखना होगा, क्योंकि हमने जो डिस्कस किया है कि सारी बेसिस इंडिया की बॉलिंग की कवर्ड है, फास्ट बॉलिंग होगी, स्पिनर्स हो गए, तो वो चैलेंज तो है। अब चैलेंज ये भी है कि आपने जब बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो एक तो आपने कंडीशंस को असेस करना है और पता चलाना, मतलब आपके टारगेट जो है, जो आपने रन ऑन द बोर्ड करने हैं, वो आपको कंफर्म होने चाहिए कि ये इस पिच के मुताबिक चैलेंजिंग होंगे। लेकिन जो दूसरा फैक्टर आपके दिमाग में, आप माने ना माने लेकिन आएगा ज़रूर कि जी हमारे सामने रोहित शर्मा ने चेस करना है, हमारे खिलाफ विराट कोहली ने चेस करना है, तो शायद अगर हम पार स्कोर देख रहे हैं या हमारे लिए विनिंग स्कोर अगर 300 है तो हमें 330 340 तक जाना। बिल्कुल। और राशिद सर, अभी शाकिब की तो हमने बात देख ली है, कंफर्मेशन आ गई है, ही इज नॉट इन। लेफ्ट आर्मर ही आए हैं उनकी जगह भी, नासुम अहमद, उनको अभी तक इंडिया ने नहीं देखा। डू यू थिंक ये थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है? सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्रेक शायद यहाँ पे नहीं मिले हो। सरप्राइज जब होता है जब आपके सामने से अच्छी ब्रेक हो रही हो या पैड पे आके ज़ोर से लग रही हो, और इनकी टेक्निकल इतने साउंड प्लेयर हैं, स्पेशली सारे इतने क्रिकेट खेले हुए हैं और बड़ी अच्छी फॉर्म में, तो इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। टॉस जीत के शायद इन्होंने भी पुराने जो 7 मैचेस देखे हैं, 4 मैचेस वो हुए हैं जो कि पहले बैटिंग करके जीते गए हैं, शायद ये भी उसी में चले गए। अपनी स्ट्रेंथ, अब दूसरे की स्ट्रेंथ पे वही खेल जो बात जाते हम हैं। काफी दफा कर चुके हैं जी, कि डेटा को कैसे दूसरे आप की use स्ट्रेंथ कर पे कभी सकते भी हैं। ना खेलें, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें। इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है कि जितने भी रन करते हैं आप ट्राई करो, उसके बाद आपकी बॉलिंग शायद ऐसी नहीं है। महमूद को आज खिलाया शायद उनकी जगह, उनकी लेंथ अच्छी है, इन पिचेस के लिए लेंथ अच्छी है और 3 स्टंप्स के अंदर वो रखते हैं, वो सक्सेसफुल हो सकते हैं वो। अब सर यहाँ पे ना एक और भी बात है जो बड़ी ट्रिकी और शायद बांग्लादेश को हॉन्ट जरूर करी होगी। हम तस्कीन की तो बात में पहले बात कर चुके हैं कि शायद वो फोर्स नहीं नजर आ रही है। अब अगर हम शकीब की बात करते हैं, तस्कीन की करते हैं या मुस्तफीक की करते हैं, तो यहाँ पे ये बात भी हमें मद्देनजर रखनी होगी कि ये 3 वो प्लेयर्स हैं
जिन्होंने 5 हासिल किए अगेंस्ट इंडिया, तो उनमें से 2 इनके लिए आज मिसिंग है। तो आपको हो सकता है कि यार शायद या तो वही वाली सरप्राइज एलिमेंट वाली अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर अनफॉर्चुनेटली दे विल बी थ्रैश फॉर अ लॉट ऑफ बाउंड्रीज टुडे। देखिए बहुत मुश्किल है बांग्लादेश के लिए यहाँ से, क्योंकि उनके 2 मेन इम्पैक्टफुल प्लेयर नहीं खेल ठीक रहे, है। शाकिब और तस्कीन। उनकी रिप्लेसमेंट वाले प्लेयर दे मस्ट बी लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कि उनको मौका मिले, वो अपनी अथॉरिटी या अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाएं। लेकिन इंडिया के लिए मुझे लगता है कि वो चेंज नहीं करना चाहते थे अपना विनिंग मंत्रा, जो ये समझते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ चेज डाउन करना है। ठीक है। इसलिए जो पहले बात हुई कि 2 पॉइंट वो लेना चाहते थे, उन्होंने भी यही बात की कि टॉस जीतने के बाद हम बॉलिंग ही करना चाहते थे। तो दोनों टीमों को जो उनकी विश थी वो मिल गई। अब देखना ये है कि राइट एग्जीक्यूशन कौन करता है। बांग्लादेश के पास जो एक इम्पैक्टफुल प्लेयर अभी मौजूद है वो है लिटन दास जी, क्योंकि उन्होंने इंडिया के खिलाफ, और वैसे भी वो ऐसा फ्लेयर वाला प्लेयर है कि अगर वो खेलता है तो वो एक राइट फाउंडेशन एंड मोमेंटम देता है टीम को। फिर कैरी ऑन करने के लिए मुशफीक और महमूदुल्लाह जो अगर खेल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए बेहतर है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि लिटन कैसा इम्पैक्ट डालते हैं एज ए बैटिंग यूनिट। अगर वो इम्पैक्ट डालते हैं तो बांग्लादेश कैन गो फॉर 280, और अगर वो नहीं डाल सके तो फिर शायद बांग्लादेश के लिए जो पार रन है वो उसके पास जाना भी मुश्किल हो जाए। एग्जैक्टली। और आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के लिए यहाँ पे क्या सेफ टोटल होगा? जो बाजी भाई ने भी बात की कि 300 यार अगर सोचे तो शायद अबव पार। सेफ तो जो है, अगर बांग्लादेश ने चैलेंज करना है इंडिया की टीम को तो वो 350 है, 350। अगर चैलेंज करना है टू विन द गेम। ठीक है। लेकिन अगर वो कोई भी 250, 240, 230 के अंदर अगर आउट होते हैं तो देन इट्स अगेन वो जो हमारी विश है वो पूरी नहीं होगी, ये मैच 40 ओवर से पहले ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पे मैं बीके आई आल्सो वांट टू आस्क यू दिस, क्योंकि सेफ जो वर्ड है वो थोड़ा सा इस वक्त इंडिया के एसोसिएट हम ना ही करें, बट 450 सेफ है शायद। 450 सेफ है। 2 इनिंग्सों में। But that's right, it will take a lot from the Bangladesh batters to post a total that will be formidable, that will challenge India slightly. Let's talk about the playing 11, Shahzad. All right, so taking a good look at the playing 11, ladies and gentlemen, today first up obviously happens to be Bangladesh because they won the toss, and so right at the top order we do see Liton Das, Tanzee, then Shando. Then towards the middle order, ladies and gentlemen, it's Miraz, Hiridoy, Mushfiqur Rahim, and then Mahmoodullah. That's one change that we could see. Nasoom then in place of Shakib, and Hassan, Shoruful, and Mustafiz. Now moving on towards India. We've already won their 3 games, the 3 encounters that they've already had, ladies and gentlemen, are coming in without any change. So look at the top order, the hitman Rohit and the very skilled Shubman Gill, and then the King Kohli. Then towards the middle order, she has Ayyar, KL Rahul, Hardik Pandya, Jadeja, and towards the end, ladies and gentlemen, the most formidable bowling attack in this World Cup 2023. Well, Roha, that's it for the playing 11. No surprises there. India going with the same team, Hafiz. If it ain't broken, no need to fix it. वैसे 10 प्लेयरों के साथ ही खेल रहे हैं मुझे लग रहा है। शरदुल को तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो क्यों इस कंडीशन में यूज किया जाए। आज अगर शरदुल ने स्कोर कर दिया फिर मैं तानु मिठाई खिला दूंगा और क्या होगा, आपको रसमलाई खिला दूंगा और थोड़ी रसमलाई वहां पे भी भेज दूंगा। मुझे लगता नहीं है। देखिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अश्विन को खिलाया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि अश्विन आपके लिए इस टूर्नामेंट में, जब ये टूर्नामेंट डीपर जाएगा तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है देन शरदुल। लेकिन मर्जी उनकी। वो कहते हैं उनके कप्तान कि यार जहां हमें लगेगा कि उनको खिलाना तो हम जरूर अडेप्ट कर लेंगे, हम उनको खिला लेंगे। उनका जो बयान है वही है। देखिए उनकी अपनी राय है। मैं ये कतन नॉट टू टेक थिंग्स अवे फ्रॉम शरदुल। उन्होंने इंडिया के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अच्छे वो विकेट लेके देते हैं, दैट इज़ फाइन। लेकिन मुझे लगता है कि अश्विन का रोल ज़्यादा बेहतर होता कि अगर वो यहाँ पे खेलते और खेलते चले जाते जब जब ज़रूरत पड़ती, और लेटेस्ट स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट जहाँ पे पिच थोड़े से स्लो डाउन होंगे, टर्न होंगे, अश्विन विल हैव मोर इम्पैक्ट देन एनीवन एल्स। अच्छा, क्वेश्चंस जो हैं वो हमने आपसे तो शो में किए ही हैं और हमें रोज मौका मिलता है। अब अपने व्यूअर्स से भी हम एक क्वेश्चन जो है वो पोस्ट करेंगे। जे डॉट क्वेश्चन ऑफ द डे जी ये है, हु विल बी द हाईएस्ट विकेट टेकर in today's match? Wow. Shahzad, why don't you give Shardul. Shardul Thakur? बस मैं रसमलाई खिलाऊंगा सबको। सुशी खाएंगे यार, सुशी चलें सुशी खिलाएंगे। But that is the question for all of you. आप लोग प्लीज अपने आंसर्स जो हैं वो गिवन फोन नंबर पे जो है भेजें, and you will get a chance to win a very exciting fragrance from J Dot. And the telephone number is on your television screens. अब आपको हम हेल्प भी करना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स जो है वो आपको बताएंगे कि आज हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होगा। कभी कभार होता है कि हम यहाँ से बैठ के किसी प्लेयर के बारे में ऐसा बोलते हैं,
वो अगले मैच में ही परफॉर्म कर देता है, तो इसलिए मेरे लिए शार्दुल है। कमेंटेटर्स कर्स का हमने सुना हुआ था, लेकिन ये जो पैनलिस्ट्स का एक पॉजिटिव जिंक्स है, इसके बारे में भी बात करेंगे। Shubman certainly happens to be one of those skilled players, ladies and gentlemen, who can on any given day can contribute wonderfully and score a ton. लेकिन रोहा, क्या आपने कभी देखा है किसी प्लेयर का इंटरव्यू हो और उसे उसके स्किपर के बारे में पूछा जाए और वो कहे कि यार मेरा स्किपर ठीक नहीं खेल रहा? आई थिंक दैट विल बी दैट वन ऑफ दोस ओकेजन जो शायद आज तक हमारे लिए विटनेस करना रह जाएगी जिंदगी में। बाकी जरा वापस आते हैं, जब हम एड लेके देने की बात कर रहे हैं, तो सर आज हम पहले बताएंगे कि हम क्या लगता है विकेट टेकर कौन होगा, फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे, वरना आप लोग बोले। मुझे लगता है सर आज होगा हाईएस्ट विकेट टेकर बुमराह। ओके, ठीक है सर। अब राशि भाई, बड़ा अंडरडॉग को सपोर्ट करते थे और ये ठीक है, आज हमने चेंज किया, आज पहली बारी मिल गई है इसीलिए पहली बारी ली है सर। ठाकुर शार्दुल ठाकुर, वाकई भाई आज सख्त है इधर। आज जी सर। कुलदीप, यार कोई तो लेगा ना बांग्लादेश की साइड फीस भाई। मेरी मर्जी, अच्छा ठीक है। ये भी आपकी चलेगी। कुलदीप ऑन अ बैटिंग ट्रैक, कुलदीप ओके वंडरफुल, येट टू सी। जी बाजी भाई, वो आज नया लड़का खेला, मतलब नया लड़का नहीं लेकिन तस्किन की जगह खेला हसन। अच्छा हसन आए हैं जी। रोहा, आप भी कोई नाम लेना चाहेंगी? मेरे ख्याल में I think I'm excited to see the new left armer Nasoom Ahmed, तो let's go with him. I think और कोई options बचे नहीं है, but आप लोग प्लीज अपने जो guesses हैं, जो predictions हैं, phone in and do let us know and you will be able to win a really exciting fragrance. उसके बारे में तो बताएं, आप इतना अच्छा describe करते हैं उस fragrance को। आई थिंक वो लाइनें भी मेरी पुरानी हो गई, लेकिन मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लाइनें आपकी पुरानी नहीं होती। सो इट्स ऑलवेज, सबसे पहले तो ये देखिए, आपको पता होना चाहिए दैट यू नो हाउ डू यू रियली नीड टू अप्लाई दैट कोलोन्स, यू नो, सो मेक श्योर दैट यू नो इट्स ऑलवेज देयर वे जहाँ पे पल्सेस होते हैं, यू नो, फॉर द कोलोन टू बी अप्लाइड, यू नो, सो इट्स ऑलवेज ऑन द स्किन राइट आफ्टर यू टेक शावर, एंड प्लीज डू नॉट रब इट. Do not rub it, because then that halo impact that you're going to create around you, that aura which will be created with that J. Dot perfume, ladies and gentlemen, you might not even get it. But very quickly, बात खत्म करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जिन प्लेयर्स के नाम लिए, किन बेसिस के ऊपर, क्या सोच के लिए? सर शार्दुल ठाकुर, आपने कहा ज्यादा विकेट्स लेगा, क्यों लगता है आपको इन कंडीशंस पे? तुक्के में भी डीप जाओगे। हाँ ना सर, अच्छा तुक्का था, मुझे लगा शायद आप एनालाइज करके कह रहे हैं। नहीं एनालाइज बिल्कुल भी नहीं, वो एक मजाक चल रहा था ना, तो मैंने कहा कभी कभार हम किसी के बारे में कहते हैं वही परफॉर्म कर जाता है। अच्छा, तो इस वजह से ठीक है, तो आपने कहा एक्सपर्ट्स लग कर देते हैं इसको। जी सर। जी, मेरी तो स्ट्रॉन्ग रीज़न है, क्योंकि मुझे लगता है कि मिडिल ओवर के विकेट टेकर अगर इंडिया के लिए कुलदीप अगर वो विकेट ना ले तो इनके लिए मुश्किल है, और वो मुझे वैसे भी लगता है कि उनका जो लेफ्ट आर्म रिस्ट की जो वेरिएशन है उसको पिक करना बैट्समैन के लिए मुश्किल है। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा विकेट लेंगे। कि वो ज़्यादा विकेट्स लेंगे, लेते हुए भी आ रहे हैं। बाजिद भाई, आपने हसन की बात की, कंडीशंस देख के, आंकड़े देख के, लेंस देख के, सारा कुछ वो नहीं देखे मैंने, वो साइड पे कर ठीक है, आपने जो आमद हुई वो बोल दी। एग्जैक्टली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमें अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडे पता लगेगा कि कौन जो है वो जीता, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों में से कौन जीता, ये ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज की गेम के लिए शहजाद एक्साइटेड हम बहुत हैं, बिकॉज पुणे, आज हम पहला मैच खेल रहे हैं इस वर्ल्ड कप का पुणे में, तो अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू फ्रॉम द क्राउड एज वेल, क्योंकि इंडिया का मैच है, एक और पैक्ड स्टेडियम हमें देखने को मिलेगा। अभी अगर विजुअल्स अगर आएंगे या जब मैच स्टार्ट होगा तो आप भी देखेंगे, बट आई थिंक दैट्स आल्सो समथिंग टू ऐड टू इंडियाज फेवर कि यू नो उनके जो 12th मैन है, दैट होम क्राउड, आई थिंक उसका फैक्टर हमने उसके बारे में बात एग्जैक्टली। लेकिन शुभमन गिल ने उसका, सॉरी, इनफैक्ट अगर हम शंटो की बात करते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा यार इट्स ऑलवेज गुड टू सी द क्राउड, एंड आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज दैट यू सर्टेनली नीड टू गेट टू, यू नो, जब आप ग्राउंड के अंदर उतरते हैं, यार इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको ड्रॉप कर रहे हैं, बट यहाँ पे आई थिंक क्राउड, थोड़ी देर में मैंने कहा था अब टाइम हो गया क्राउड को देखने का। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग मी। इट्स टाइम फॉर द एक्शन नाउ, लेट्स गो टू पुणे फॉर द मैच। गेम ऑन है।